Good morning, students. Good morning. So, yesterday we had solved one question. We started with the second one, and I think last transaction is remaining. So, before that, second last transaction, I would like to revise. Okay. So, look here. Now, in the second last transaction, we were having this point. के checks of rupees 9,200 were issued, out of which 2,200 were presented for payment on 15th July. Now, many students make mistake here. The concept is that BRS is prepared for the difference of items. So look here, 9,200 के checks पेमेंट साइट पर लिखे गए हैं बिकॉज वी हैव इश्यूड द चेक. जब चेक इश्यू होते हैं उससे पहले पेमेंट साइट पर लिखे गए हैं, बट उसमें से 2,200 के चेक नेक्स्ट मंथ क्लियर हुए हैं. इफ चेक्स आर क्लियर्ड इन द नेक्स्ट मंथ इट मींस दैट दीस आर नॉट क्लियर्ड फॉर द करंट मंथ. इन जून 2,200 के चेक्स क्लियर नहीं हुए हैं. ओके, सो 2,200 के जो चेक्स है वो पेमेंट साइट पर तो है, बट इट इज नॉट देयर ऑन विड्रोवल साइड. ओके, विड्रोवल साइड से पैसे नहीं गए हैं जून में. याद रखो, हम प्रिपेयर कर रहे हैं बीआरएस एज ऑन 30 जून. तो जून के बाद कुछ लिखा गया हो कोई भी साइट पर तो ऐसा माना जाएगा कि वो नहीं लिखा गया है एज ऑन जून, क्योंकि वो जून तक तो नहीं लिखा गया था. तो वी नीड टू रिस्ट्रिक्ट अवर सेल्फ. डोंट गो बियॉन्ड जून. अगर जून का बीआरएस है तो स्टिक टू दैट डेट. 30 जून के बाद कुछ भी कोई भी साइट पर लिखा है इसका मतलब वो एज ऑन 30 जून नहीं लिखा गया है. सो आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस पॉइंट. सो 2,200 इसमें से जो चेक्स आपने पेमेंट साइट पर तो लिखे हैं, बट these are not cleared because they were cleared. Presented for payment means cleared. They were cleared in July. It means not cleared in June. ये इनडायरेक्टली घुमा फिरा के आपको बोल रहा है कि 2,200 के चेक्स क्लियर नहीं हुए हैं. सो आई होप दिस वन इज वेरी क्लियर. ओके, मार्क दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. Nice question. Now, fifth one, passbook shows credit of 330 as interest and debit of 60 as bank charges. So passbook shows credit of 330. So coming back to our solution, I will extend the lines. This was our solution. Okay, मैंने आपको एक method बताई थी and this method is absolutely easy. Acha, somebody did some annotation. Who was that? Okay, so fifth transaction, it is mentioned that passbook shows credit of 330 as interest. So passbook के credit में 330 लिखा गया है and debit of 60 as bank charges. Obviously, bank charges are written on withdrawal side. So now my question to you is, where will you show this item of 330? इसको प्लस करोगे या माइनस करोगे, एंड व्हाई? आई एम अवेटिंग रिप्लाई फ्रॉम यू. Let me see if my speaker is correct. हाँ, yes, but I am not able to hear any one of you. ठीक है. So this Sir, 330, this is yesterday's sum. yes, yesterday's sum. Okay, जो बाकी था last transaction 330 should be added. So I will write here 330. Okay, addition में fourth one.
अच्छा 2200 में लिखना बाकी था, सो आई विल राइट checks issued but cleared next month. And please note, cleared next month means not cleared. Okay, you can also write issued but not cleared. You can also mention the word not presented for payment. Okay, not cleared means not presented for payment. ओके, चेक में क्या है, दो स्टेज होता है. इफ आई रिसीव द चेक, सो आई विल डिपोजिट द चेक इन माय बैंक, तो इट इज कॉल्ड प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और उसके 3 दिन के बाद क्लियर होता है, सो दैट इज नॉट हैपनिंग. एंड दिस ट्रांजेक्शन ऑफ 60 जिसके ऊपर माइनस साइन है, सो आई विल डिडक्ट दिस एंड आई विल राइट बैंक चार्जेस, यू नो इट was debited by bank. अब आपके लिए एक छोटा सा काम है. What you will do, you will have to prepare the line like this. ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है, फिर we will match our answer. So पहले इन चारों का टोटल कर दो. 5400, I think 5530. Please confirm. Okay. And we will add this in 12,000. 17,530. जरा चेक करो टोटल. 3 to 5, 5,400, sorry, 3,000, 5,000, 5,400, 5,730 होगा. Yes, 5730. Then it is 1,560. ये माइनस करना है और एक मैजिक होगा. ओके, माइनस करो और देखते हैं क्या आंसर मिलता है. व्हाट शुड वी गेट? बैलेंस एज पर पासबुक. यस, बैलेंस एज पर पासबुक. सो 13 minus 6, then 6 minus 5, 7 minus 1. So 16170 is what we are getting. And yes, this is the correct answer. 16170 is the answer. So I hope you are clear about this question. चलो आज के लिए भी 2 क्वेश्चन का टारगेट है. Okay, so now we will solve the next question, question number 5. So I hope you must have learned this question properly. Now we will prepare the format for the next question. So prepare the lines, prepare the format of BRS as usual. सर कैन यू प्लीज स्क्रॉल अप फॉर 1 मिनट. हाँ, yes. देखो ये वर्किंग नोट है. ओके, एंड ऊपर क्वेश्चन भी है. So take a screenshot. Acha, about यस सर 330, डन. I had forgotten to write. This 330 was interest. So I will write bank interest. Interest paid by bank to us. Bank interest. So let's prepare the format for the next question. Comparatively more space you will require. We need 2 columns. And एक काम करता हूं, मैं वर्किंग नोट बाजू में ही बना देता हूं.
So let me prepare the working note here. Cash book is having receipts and payment, and passbook is having withdrawals and deposit. So this is my format, and ये आप नीचे बनाना वर्किंग, ओके, एंड वर्किंग विल बी ट्रांजेक्शन वाइज, ओके। तो मैं अलग अलग लाइंस, आपके बुक में तो ऑलरेडी लाइंस है, so you need not do this lining, horizontal lining। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द क्वेश्चन। कैश बुक shows a balance of 12,500। कैश बुक में बैलेंस है 12,500। So one thing is for sure, this is our starting point। कुछ बोला नहीं है कि ओपनिंग है या क्लोजिंग बैलेंस है, तो व्हाट डू वी अज्यूम कि इट्स ए क्लोजिंग बैलेंस, ओके, बिकॉज बीआरएस के लिए वी नीड क्लोजिंग बैलेंस। सो आई एम राइटिंग हियर क्लोजिंग बैलेंस एज पर कैश बुक, इट इज 12,500। तो फाइनली क्या मिलेगा आपको, क्लोजिंग बैलेंस एज पर पासबुक, and they have not mentioned anything about month, so I will write BRS, actually full form लिखना है बैंक reconciliation statement। so bank reconciliation statement for whatever is the period is not given, then I have particulars and then rupees। attendance is very less, only 24 students are live, so that's not a good thing। Acha, and when we start with closing balance as per cash book, so here I will put minus sign, closing balance as per cash book, receipt side, closing balance means receipts are more in cash book, so then alternate signs, minus plus minus plus, and now I am ready to start the BRS। so first transaction, checks issued but not presented for payment 6,000। अब आपको मुझे बताना है where it will be recorded, checks issued but not presented for payment। कह रहा हूं checks issued, सर ऐड होगा। ओके। मुझे ये बताओ कौन से साइट पर लिखा गया है ये checks issued, पेमेंट सर साइट। पेमेंट। यस, चेक्स इश्यूड आर रिटर्न ऑन पेमेंट साइट। चलो पहले फटाफट ये डिस्कस कर लेते हैं, चेक्स इश्यूड आर रिटर्न ऑन पेमेंट साइट। सो पेमेंट साइट पर ये जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है 6,000 लिखा गया है, ओके। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, चेक्स डिपोजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। चेक्स डिपोजिटेड कहां पर लिखते हैं, रिसिप्ट। रिसिप्ट, ओके। इंक्रीज एनर्जी लेवल, फटाफट सोचो मजा आएगी। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक ने कुछ पे किया है तो कहां पर लिखा गया होगा, सोचो। यस, बैंक ने पे किया है तो पासबुक में, दैट इज विड्रॉवल साइड, विड्रॉवल साइड से तो पैसे जाते हैं। बैंक चार्जेस, बैंक ने कुछ चार्ज किया है, पेमेंट। नो, बैंक ने चार्ज किया है तो ये तो बैंक पासबुक में लिखेगा। यस, विड्रॉवल साइड। देन डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, तो ये पासबुक में लिखा होगा बिकॉज कस्टमर ने डायरेक्ट बैंक में रख दिया पैसा। तो यस, परफेक्ट,
It must Deposit. be reported in deposit side. Yes. Then interest on investment collected by bank. Bank has collected the interest. Yes, perfect answer. Okay, deposit side, because we must have received this money. So that's very easy. अब देखो कितना जल्दी ये क्वेश्चन खत्म होता है. Cash discount allowed of 200 was recorded on the debit side of the bank column. अब देखो, first of all, when you allow any discount of 200, so this 200 should not come in cash या बैंक कॉलम. बैंक कॉलम में ये डिस्काउंट नहीं आता है, that we know. बट बाय मिस्टेक क्या कर दिया है, 200 का जो डिस्काउंट है वो रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड. अब याद रखो, रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड. ओके, और प्लीज नोट, बैंक कॉलम, whenever they say bank column, it is of cash book. ओके, बैंक कॉलम कैश बुक में होती है, receipts and payment. तो recorded on the debit side of cash book. So can I say it is overcasted? I will solve this question as per both the methods. तो ये easy वाली methods देख लो. Okay, debit side में हमने 200 का डिस्काउंट रिकॉर्ड कर लिया है. इसका मतलब इट इज ओवरकास्टेड. डिस्काउंट नहीं आता है, जितने पैसे मिले हैं उतना ही रिकॉर्ड हम करते हैं. सो देयर इज ओवरकास्टिंग. एंड ओवरकास्टिंग के लिए यस्टरडे वी लर्न द कंसेप्ट. ओवरकास्टिंग है तो विच साइन, सेम साइन. एंड अंडरकास्टिंग है तो अपोजिट साइन. सो चलिए अब फटाफट इसका साइन डिसाइड कर लेते हैं. सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन मैंने रिकॉर्ड कर लिया. सेकंड में रिसिप्ट साइड पर 9000 होगा, सेकंड ट्रांजेक्शन. इन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, थर्ड ट्रांजेक्शन, विड्रोवल साइड में 5000 होगा. ये है नेक्स्ट. देन नेक्स्ट फोर्थ में बैंक चार्जेस विड्रोवल साइड में होगा 300. सो विड्रोवल साइड में लिख दिया. नेक्स्ट डिपॉजिट साइड में 8000. so this is 8000. next again deposit side में 2000. so I have written 2000. and now we have final transaction जो है अंडरकास्ट या ओवरकास्ट. तो look here, debit side of cash book. so debit side of cash book 200 से ओवरकास्ट है. सो ओवरकास्ट में हम सेम साइन फॉलो करेंगे. सो नाउ यू ऑलरेडी नो क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है. ओके, सो ऐड में वी विल राइट जो क्वेश्चन में दिया है वही पर्टिकुलर्स में लिखेंगे एंड अमाउंट हम लिखेंगे. एंड देन आई विल डिडक्ट फ्यू ट्रांजेक्शंस. सो आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस थिंग, क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है. नाउ आई एम ऑल्सो टीचिंग यू एज पर लॉजिकल मेथड. अगर आपको डायरेक्टली ये समझना है तो लुक फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखो. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग डायरेक्टली. सो इन डायरेक्ट मेथड चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. अब सोचो, when checks are issued payment side पर लिखा है and when you write something on the payment side, then can I say cash book की बैलेंस कम होगी? yes. so comparatively पासबुक की बैलेंस ज्यादा होगी एंड हैंस इसको क्या करना है, प्लस करना है. अब सेकंड में से चो चेक्स डिपोजिटेड. when checks are deposited cash book में we have written on receipt side and when I write on cash book receipt side तो कैश बुक की बैलेंस बढ़ जाती है. कैश बुक में रिसिप्ट साइड पर व्हेन वी राइट एनीथिंग वी हैव मोर बैलेंस and when cash book is having more balance, so what will be the effect on passbook? Passbook will have lower balance. I think this is also clear to you. Now look here, bank charges and insurance premium both are written on the withdrawal side.
when something is written on the withdrawal side, then can I say passbook will have lower balance? Yes or no? Hello. अच्छा, कोई डाउट हो तो मुझे बताओ. ओके, फील फ्री टू कम्युनिकेट. एंड लुक हियर, when something is written on the deposit side, तो passbook balance will be lower or higher? Mention in the chat box or speak out. When something is written on the deposit side of passbook, then passbook की balance will be lower or higher? Higher. Higher. Very good. Okay, so when passbook is having lower balance, ऊपर वाले थर्ड एंड फोर्थ में वो माइनस होगा. when passbook balance is more, then there will be plus. Now look here, when there is overcasting of receipt side, this is recorded on the receipt side. Okay, overcast means ज़्यादा लिखा है on the receipt side. So when something more is written on receipt side, cash book will have more balance, comparatively passbook will have lower balance, so hence it will be minus. So देखो, I have explained this question in both the ways. ये जो मैंने रेड कलर में लिखा है, ओके, ये माइंड में प्रोसेस होता है, ऐसे सोचकर साइन डिसाइड की जाती है. एंड इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस, तो मैंने आपको ये मेथड भी बताई है. एक्चुअली दोनों मेथड सेम है, बट यहाँ पर यू नो आपको ये लिखना है कौन से साइड पर कितना लिखा गया, दैट्स इट. उसके ऊपर की साइन फॉलो करो. बोथ आर सेम. ये जो साइन है ना, वो इसलिए बनाई है ताकि ये सोचना ना पड़े, बट इट इज अप टू यू. कोई भी मेथड फॉलो करो, I don't have any problem. Okay, लेकिन my duty is to teach you both the methods. जिसके माइंड में ये क्लियर नहीं है वो थोड़ा सोचे, प्रैक्टिस करे क्वेश्चंस को, then this question will be in control. It's very easy, but you should know कि कौन से साइड पर वो लिखा गया है. Method is ultimately same. So you will be able to राइट. अब मैं क्या करता हूं, ये पर्टिकुलर्स नहीं लिखता हूं, मैं सिर्फ प्लस और माइनस ही लिखता हूं. ओके, ये बाकी वाला फिल इन द ब्लैंक्स जो लिखना है दैट यू कैन डू. सो प्लस में व्हाट आई हैव, प्लस में आई कैन सी दैट हियर आई हैव 6000. सो ऐड में आई विल राइट 6000, एंड अगेन हियर इन ऐड आई हैव 8000 and 2000. 8000 and 2000. Okay, so that's it. Now I have transactions for deduction. So let me do total first. It will be 16,000. So it will be 28,500. अब क्या लिखना है, that is already given to you. Okay, short में ही दिया है. And less में I have 9,000. Then I have 200 undercasting के लिए. देखो ये ऊपर नीचे लिखोगे तो भी चलेगा. Okay, there is no problem. And here I have two items, 5,000 and 300. So total 7 transactions were given. अब इसका टोटल करते हैं. It is 9,500, 14,500. माइनस करना है. So 28 minus 14 will be 14. Congratulations. We got the answer, which is 14,000. Okay. And there is one request. देखिए, what I have written, देखो, without working note, it will be difficult for you to revise. Any method you follow, direct method भी आप follow करते हो, then it's fine. लेकिन जिस स्टूडेंट को डायरेक्टली ऐसा सोचने में
थोड़ा डाउट आता है तो प्लीज राइट डाउन दिस. अगर आप ये लिखोगे एज इट इज व्हाट आई हैव रिटन, देन इट विल बिकम इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ओके, so raise your hand if this one is clear to you, or you can mention in the chat box. Okay, so writing of these details, this is actually a clerical work which you can do as a homework. So let's move to the next question. Next question I will discuss. I will give you as a homework. उसमें plus minus sign हम decide कर लेते हैं. Okay, preparation of BRS is easy. Okay. Now, okay, this question seems good. More transactions means more learning. Okay, students feel the other way around. So, from the following particulars, prepare bank reconciliation statement as on 31st December. So, when month is given, be clear. अगर कोई चेक जनवरी में क्लियर होता है, it means it is not cleared. So, first one, debit balance as per cash book. Okay, so we know debit balance as per cash book. So in this question, I will only prepare the working note so that we can be clear about the sign. So prepare the working. I am not preparing BRS because this BRS preparation I will give you as a homework. But आपको तो कुछ करना ही नहीं है. Signs will be decided. You just need to present it. Okay, here I have cash book, receipts, payment, passbook, withdrawal, deposit. This is my working note. And they have given debit balance as per cash book. So I will put minus sign here, then plus, minus, plus, alternate signs. Now first transaction starts from here. So check of 500 issued in favor of Karan had not been presented for payment. ये issued word को circle करो. मुझे बताओ कहां पर लिखा होगा ये 500. Mention fast. Perfect. Payment side. 500 का चेक पेमेंट साइड पर लिखा गया है, तो ये क्या होगा? प्लस होगा. ओके, और अगर आपको लॉजिकली सोचना है तो व्हेन यू राइट समथिंग ऑन पेमेंट साइड, कैश बुक विल हैव लोअर बैलेंस. सो इट मींस हमें तो पासबुक ही बैलेंस चाहिए, तो पासबुक विल हैव हायर बैलेंस. तो हैंस ये ट्रांजेक्शन को क्या करना चाहिए? प्लस करना चाहिए. लुक इनटू आवर मेथड. इसमें भी क्या प्लस हो रहा है? यस, बिकॉज मेथड्स आर सेम, सिर्फ समझाने का तरीका अलग है. सो मैं ड्यूअल प्रोग्रामिंग कर रहा हूं, आपके माइंड में दोनों ही मेथड क्लियर कर रहा हूं. इट इज सेम. ओके, देन चलो पहले कुछ चलो ये कर लेते हैं. नाउ अ बिल ऑफ 700 रिटायर्ड बाय बैंक अंडर रिबेट ऑफ ₹20. अब याद रखो, rebate means discount. रिटायर्ड का मतलब है यहां पर पेड. सो मुझे बताइए कि विड्रोवल साइड में कितना लिखा होगा? रिटायर्ड बाय बैंक, बैंक ने पे किया है. $680. ये ट्रांजैक्शन को स्टार मार्क करो. ओके, देखो, बैंक हैज पेड द बिल अंडर रिबेट. समटाइम्स वी गेट डिस्काउंट इफ अवर क्रेडिटर इज काइंड टू अस. सो बैंक ने 700 का बिल पे किया, उसको डिस्काउंट मिला, तो बैंक से हमने चेक से पे कितना किया होगा? 680. बट द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वॉज क्रेडिटेड इन द कैश बुक. अब देखो ये ट्रांजेक्शन में हुआ क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. इट्स वेरी लॉजिकल, लेकिन ये मेथड में एडवांटेज ये है कि इवन कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस भी आप इजीली समझ सकते हो.
सो लेट मी मेक लाइंस हियर, और अगर और अच्छा प्रेजेंटेशन करना है तो यू कैन राइट लाइक दिस, एडजस्टमेंट नंबर 2। ओके, यहां पर है एडजस्टमेंट नंबर 3। सो बैंक से विड्रोवल साइड से कितने पैसे गए हैं? 680। लेकिन व्हाट इज गिवन? दे हैव गिवन दैट के फुल अमाउंट इज क्रेडिटेड इन द कैश बुक। कैश बुक के क्रेडिट में फुल अमाउंट है। सो whenever such thing is there, दोनों साइड पर अमाउंट तो है बट अलग अलग है, तो आई टोल्ड यू वन थिंग, दोनों में से लोअर अमाउंट माइनस कर दो, कोई भी एक साइड को 0 कर दो। सो आपको एक यहां पर मिल जाएगा, 680 में से 680 माइनस कर दो, डिफरेंस ले लो। सो व्हेन आई टेक द डिफरेंस, तो डिफरेंस 20 का है। सो प्लीज नोट, ये जो 20 है इट इज एज गुड एज ओवरकास्टेड। जहां पर ज्यादा लिखा गया है 20 से ये ओवरकास्टेड है, एंड ओवरकास्ट में वी फॉलो द सेम साइन। सो सोचो जरा, 20 रुपीज ज्यादा लिखा गया है पेमेंट साइड पर, तो ये ट्रांजेक्शन होगा प्लस। एंड लॉजिकली अगर सोचना है तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि विड्रोवल साइड में 680 है, पेमेंट साइड पर 700 है, इसका मतलब है पेमेंट साइड है ओवरकास्ट। कितनी ज्यादा लिखी गई है? ओवरकास्ट कितना है? 20 रुपीज। सो व्हेन पेमेंट साइड इज मोर, कैश बुक में पेमेंट साइड पर ज्यादा लिखते हो तो कैश बुक की बैलेंस कम होती है, तो इसका मतलब कंपैरेटिवली पासबुक की बैलेंस ज्यादा होगी, हेंस वी नीड टू ऐड दिस ट्रांजैक्शन। okay, so I have also explained another logic. So this transaction should be added, it should be added. So BRS में everything depends upon the logic. Fourth one, a check for ₹295 deposited in the bank. ये जो वर्ड में सर्कल कर रहा हूं ना, उस पर अटैक करना होता है so that it becomes clear. Check of 295 deposited in the bank has been dishonored. I told you one thing, when check is dishonored, there is no question of writing this on passbook. पासबुक में ये मेंशन नहीं होगा because dishonored है, चेक के पैसे नहीं मिले हैं, तो it's not written in passbook. तो सवाल ये है कैश बुक में कहां पर लिखा होगा? रिसिप्ट साइड। ओके, 295 का चेक is recorded here on receipt side, so sign होगी minus. If I explain you logically, when something is written on receipt side, कैश बुक की बैलेंस ज्यादा होगी, so comparatively पासबुक की बैलेंस कम होगी, इसलिए ये माइनस होगा। so बहुत इजी है बीआरएस में, तो दिस यूज्ड टू बी माय फेवरेट चैप्टर, फुल स्कोरिंग सबसे पहले यही अटेम्प्ट करते थे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, fifth one, a sum of 800 deposited in the bank has been credited as 80 in the passbook. अब देखो यहां पर आपको इस मेथड से बहुत जल्दी ये पिक्चर समझ में आ जाएगा। सो 800 डिपोजिटेड इन द बैंक, तो इसका मतलब है व्हेन वी डिपॉजिट समथिंग, कैश भी डिपॉजिट करते हैं उससे पहले रिसिप्ट साइड पर लिख कर जाते हैं। सो एडजस्टमेंट नंबर 5, 800 रिसिप्ट साइड पर है बट हैज बीन क्रेडिटेड एज 80 इन द पासबुक। क्रेडिटेड मीन्स पासबुक क्रेडिट में 80 रुपीज है। सो कोई मुझे बताएगा कि कौन सी साइड ओवरकास्टेड है एंड कितने अमाउंट से? लोअर अमाउंट दोनों में से माइनस करो, ये 0 बन जाएगा और ये बन जाएगा 720। सो विच साइड इज ओवरकास्ट? यस, रिसिप्ट साइड इज ओवरकास्ट, तो 720 से रिसिप्ट साइड ओवरकास्ट है। सो ओवरकास्ट में सेम साइन, तो ये 720 क्या होगा? माइनस होगा। ओके, सो आई होप दिस ट्रांजेक्शन इज ऑल्सो क्लियर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब दोनों ही साइड पर लिखा गया हो तो टेक द डिफरेंस,
बट याद रखो वो दोनों साइड है ना इक्विवेलेंट होनी चाहिए, अदरवाइज ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज नोट, रिसिप्ट साइड और डिपॉजिट साइड दोनों में ही कुछ अमाउंट है फॉर द सेम ट्रांजेक्शन, देन टेक द डिफरेंस। पेमेंट एंड विड्रॉवल में सेम साइड्स है, actually if amount is different then take the difference of amount. Okay, then next one, payment side of the cash book is undercast by 200. So transaction number 6, payment side of cash book is undercast by 200. So अब ये 200 में मैंने कहा ऑपोजिट साइन फॉलो करनी है, सो दिस 200 में आप जब लिखोगे तब आपको ध्यान देना है। ओके, मैं इसको हाईलाइट करता हूं, अंडरकास्ट है, और एक काम करो, जब अंडरकास्ट है ऑपोजिट साइन आपको फॉलो करनी है, तो मैं यहां पर माइनस लिख देता हूं। आर यू क्लियर? इट इज टू बी डिडक्टेड, इट इज टू बी डिडक्टेड। Okay, somebody's microphone is unmuted. Okay. So, I hope this one is also clear. And if you want to feel logically, then what will happen? Payment side is undercast. कैश बुक में जब पेमेंट साइड पर आप कम लिखते हो, इसका मतलब है कि ये एज गुड एज आपने रिसिप्ट साइड पर लिखा है, तो कैश बुक विल हैव मोर बैलेंस। ओके, so comparatively passbook will have lower balance, hence it is to be deducted. ये माइंड में सोचने वाली मेथड है, you can do like this. Okay, again I'm saying if payment side is undercast, so it means that when we write less on the payment side, so that's good, cash book की balance will be more, so passbook की balance will be comparatively lower, hence minus. The final one, a bill receivable for 1000 already discounted with the bank, and what happened, it dishonored on 31st December. So I have already explained you this transaction when bill receivable is getting dishonored. So you tell me ये कहां पर लिखा होगा? पासबुक में which side? Withdrawal side. Okay, when bill receivable is discounted and it is getting dishonored, bank will collect from our bank account. हमारे बैंक से पैसे चले जाएंगे. How much? 1000. ओके, पूरा का पूरा बिल का अमाउंट है 1000, वो बैंक वसूल कर लेगा. वी ऑलरेडी नो दिस. सो व्हेन 1000 बैंक ने चार्ज कर लिया है, तो वी ऑलरेडी नो इट इज टू बी डिडक्टेड. ओके, सो अगर लॉजिकली सोचना है तो व्हेन समथिंग इज रिटन ऑन द विड्रॉवल साइड, पासबुक विल हैव लोअर बैलेंस, and hence this transaction is to be subtracted. Look here, इसमें भी वही चीज आ रही है, subtracted. So now I feel you are clear about this question. Okay, so this question you need to present it, plus or minus signs are already discussed, so this presentation part is homework. Feel free to ask any doubts. Take the screenshot, meeting is about to get over. Take the screenshot if you wish. And whatever I had written in the textbook, you should also write, so it will help you in revision. Otherwise, BRS में revision के time